Hello everyone. Today we are going to talk about the concept of good corporate governance. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy, where learning and education is imparted in an easy way. If you're new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start discussing the concept of good corporate governance. What is corporate governance? Corporate governance means practices, rules, and procedures which govern an enterprise and its functioning. Corporate governance is the system by which the companies are directed and controlled. Corporate governance वह सिस्टम है जिसके द्वारा कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस के लिए उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शेयर होल्डर्स का रोल क्या है गवर्नेंस में? शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं यह इंश्योर करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, उसको कंप्लाई किया जा रहा है। So what is good governance? A good governance is said to be present in an organization when the concern takes into consideration the interest of all stakeholders and the ideas are generated through participation of all stakeholders. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड गवर्नेंस को कब प्रेजेंट कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है जब एक ऑर्गेनाइजेशन सभी स्टेक होल्डर्स के आइडियाज और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करता है और जो भी आइडियाज जनरेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वह सभी स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन के द्वारा किए जाते हैं। So there are some factors that highlight the presence of good governance in the organization. What are those factors? The first one is effective composition of board, good board practices and commitments. Another is effective leadership by the chairman, concern for other stakeholders, sustainability, reputation, ethical disclosure and openness, compliance of rules, timely follow-up of rules, timely and accurate communication, stakeholder interface, and optimal utilization of resources. In the further slides, we will discuss each one of these factors in detail. So the first factor of good governance is optimum utilization of resources. It is an important feature of company form of organization that shareholders or investors do not get a chance to participate actively in management of a company. Therefore, it is the responsibility of management to ensure the shareholders that their money is optimally utilized. Management must also ensure that the money provided by investors is not employed in too risky projects. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या फीचर है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स बिजनेस की मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते और शेयर होल्डर्स के द्वारा अपने बिहाफ पर काम करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको यह इंश्योर करना है कि शेयर होल्डर्स ने जो मनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट की है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, उसका सही यूज़ किया जा रहा है और दूसरा यह भी इंश्योर करना है कि इन्वेस्टर्स के द्वारा जो मनी प्रोवाइड की गई है उसको ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स में ना लगाया जाए so that the objective of profit, wealth and value maximization can be achieved. Next important principle of or the factor affecting good governance is effective composition of board, good board practices and commitments. Here the board of directors should be competent enough to effectively supervise the working of operational managers. It would also add to reduction in misutilization of resources and protection of shareholders' interest. यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने कॉम्पिटेंट हो, उनमें यह योग्यता होनी चाहिए कि वह जो ऑपरेशनल मैनेजर्स उनके नीचे काम कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकें, उनको उनकी जो ड्यूटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समझा सकें और उनको सुपरवाइज कर सकें। और दूसरा जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन है उनका मिस यूटिलाइजेशन ना हो और सभी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके बिकॉज यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स की मनी को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो they should be competent enough to perform their duties and responsibilities. This entails clear definition of roles and authorities of stakeholders. यहाँ पर stakeholders के roles और authorities को clearly define किया जाए।
This entails that duties and responsibilities of the directors are understood. सभी डायरेक्टर्स के द्वारा क्या क्या उनको ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको क्लियरली वह अंडरस्टैंड करें. This entails that the board is well structured and has appropriate composition and mix of skills and appropriate board procedures are in place. इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बोर्ड मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वह वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, क्या कंपोजिशन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उनके लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है हर एक बोर्ड मेंबर के लिए, और वह स्किल्स वह पोजेस करते हो. इसके अलावा जो बोर्ड प्रोसीजर्स हैं, अप्रोप्राइट बोर्ड प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाए. It ensures that corporate governance policies and procedures have been formalized and distributed to the relevant staff. इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट किया गया, उनको फॉर्मुलेट करने के बाद सभी स्टाफ मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. बिकॉज स्टाफ मेंबर्स उसको कंप्लाई कब करेंगे, फॉलो कब करेंगे, जब उनको वह प्रोसीजर्स और पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, उनको समझा दी जाए कि क्या क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाएंगे रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस. And it ensures that corporate governance code has been developed and a code of business ethics has been developed. तो गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को डेवलप किया जाना चाहिए और कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स भी डेवलप किया जाना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयज या मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब जो भी अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं उस समय वह उन कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर सकें, उनको कंप्लाई कर सकें, के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंश्योर किया जा सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इफेक्टिव लीडरशिप बाय द चेयरमैन. The chairman is the chief of board of directors. Therefore, effective leadership by chairman would enhance the performance level of board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीड कौन करता है, चेयरमैन. चेयरमैन चीफ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. तो यहाँ पर चेयरमैन में इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, बिकॉज अगर वह इफेक्टिवली लीड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस लेवल हाई होता है. एंड व्हाट शुड बी द लीडरशिप क्वालिटीज, एंड हियर द लीडरशिप means it leads to change because it leads the change in the organization through its team. It shares the vision. Shared vision means the leader share the vision of the organization to its team members. एक लीडर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, मींस उसको फ्यूचर में क्या अचीव करना है, वह अपने सबॉर्डिनेट्स का या फिर जो अपनी टीम है जो उसके नीचे काम कर रही है उन मेंबर्स को कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वह मेंबर्स उस विजन को ध्यान में रखते हुए काम कर सके. It empower people and inspire people to achieve the organizational objectives. इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज में आती है कि वह लोगों को एम्पावर करे, उनको प्रेरित करे और उनको कैपेबल बनाए ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम कर सके. And these leadership qualities are interrelated and interconnected to each other. So the chairman should lead the board of directors to enhance the performance level. Another important factor is concern for other stakeholders. As we have already discussed, there are two types of stakeholders, internal and external stakeholders. What are the internal stakeholders? Like the shareholders, customers, suppliers, communities, employees, and workers. And external are government, media, activists or NGOs, religious groups, competitors, environment, and local communities. So this is very important that the corporation takes care of other stakeholders as well. It must contemplate the effects of a decision on stakeholders before finalizing the same. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेशन को यह इंश्योर करना है कि सभी स्टेक होल्डर्स के हितों का ध्यान रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी उनके द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है उसका इफेक्ट स्टेक होल्डर्स पर क्या होगा. किसी भी डिसीजन को फाइनलाइज करने से पहले उसका इफेक्ट देखा जाए कि इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं स्टेक होल्डर्स पर पड़ेगा हमारे किसी भी डिसीजन का. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कंसर्न होगा,
while making the decisions. In that case, it will lead to good governance or in an organization, because governance ensure करता है कि सभी stakeholders के interest को protect किया जाए. Next important factor is sustainability. What is sustainability? Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. सस्टेनेबिलिटी वह डेवलपमेंट है जिसके द्वारा प्रेजेंट नीड्स को मीट किया जाता है, कि एट प्रेजेंट हमारी क्या ज़रूरतें हैं उसको तो हमें मीट करना है, लेकिन उसको उन नीड्स को पूरा करते समय क्या ध्यान में रखना है कि जो फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी है अपनी नीड्स को मीट करने की, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन कई बार प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा ध्यान में रखता है और उसको मीट करने के लिए कई बार वह अपने एनवायरनमेंट, सोसाइटी, उनके साथ इनजस्टिस कर देता है या फिर उनके हितों का ध्यान नहीं रखता. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी अर्न करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको सोसाइटी और एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, तभी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंश्योर किया जा सकता है. सो for making sustainability to be happen in the organization, it will have to follow a sustainable business model. What is sustainable business model? Here, their sustainable business model is based upon 3 P's. What are 3 P's? People, planet, and profits. People means the society. Planet means the environment in which the organization is working. And third P is profits. Profits are related to the economy of the country. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए बिजनेस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉफिट अर्निंग एसेंशियल है. विदाउट प्रॉफिट वह बिजनेस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता और अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर सकता. लेकिन प्रॉफिट को अर्न करने के साथ साथ उसको सोसाइटी, लोगों का भी ध्यान रखना है, बिकॉज सोसाइटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. सोसाइटी में हमारे कस्टमर्स आ जाते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी की वेलबींग का ध्यान रखना है, उनके हितों का ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है, एज वेल एज इट विल हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. उसको प्लेनेट मीन्स एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज एक बिजनेस एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ लेता है, फ्रेश एयर लेता है, वाटर लेता है. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस हाउसेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि वह प्लेनेट के लिए क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस एक्टिविटीज का इम्पैक्ट है, मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, बीरेबल इम्पैक्ट होना चाहिए. मीन्स कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना करें, एडवर्सली हम पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए. साथ ही वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हुए एक सफिशिएंट प्रॉफिट्स अर्न करे, ताकि बिजनेस एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सके, इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया जाए सभी एम्प्लॉयज़ के साथ सोसाइटी के लिए. तो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जब एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किया जाता है, देन इट लीड टू सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी लीड टू गुड गवर्नेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. Next important factor is reputation. Reputation means the goodwill or ranking. So it may be good or bad. For a listed company, a good reputation is a key asset because it helps to enhance the shareholder value. And the companies with high reputation have corresponding high share prices. किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए गुड रेपुटेशन एक की एसेट है, बिकॉज इसके द्वारा शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज होती है. वह कंपनी जिनकी हाई रेपुटेशन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग शेयर प्राइजेस भी हाई होते हैं. एंड a high share prices makes the raising of extra capital for existing or new investments easy. और एक कंपनी की जिसके शेयर प्राइसेस हाई होते हैं वह अपने नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल बहुत इजीली रेज कर सकती है, बिकॉज नए इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस हो जाते हैं. बिकॉज कोई भी शेयर होल्डर जब इन्वेस्टिंग डिसीजन लेता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने का, अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वह देखता है कि उसके शेयर प्राइसेस हाई है या लो है. तो जिस कंपनी के शेयर प्राइसेस हाई होते हैं वहां पर फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, तो शेयर होल्डर्स से मनी आप इजिली रेज कर सकते हो. एंड डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी इज क्विकली रिफ्लेक्टेड बाय अ ड्रॉप इन इट्स शेयर प्राइसेस. और एक कंपनी की रेपुटेशन का अगर डैमेज होता है, मीन्स रेपुटेशन डाउन होती है, तो वहाँ पर उसके शेयर प्राइसेस में भी ड्रॉप आ जाता है, शेयर प्राइसेस भी कम हो जाते हैं.
सो रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को गुड रेपुटेशन मेंटेन करना भी एसेंशियल है फॉर हैविंग द गुड गवर्नेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. Next important factor is ethical disclosure and openness. This is a very important factor for ensuring good governance. A corporate enterprise should disclose some important issues such as financial reports, director's report, responsibility statement. A company should maintain a website having facility of two-way communication with shareholders. Because shareholders और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बिजनेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में अपनी मनी इन्वेस्ट की है, तो वे जानना चाहते हैं कि बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या उनकी मनी को सही यूटिलाइज किया जा रहा है और बिजनेस कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग द डिविडेंड आउट ऑफ दोज प्रॉफिट्स, तो उनको सही डिविडेंड पे किया जा रहा है नहीं किया जा रहा. तो उन बिजनेस ऑपरेशंस को वे कैसे जान सकते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करेगा. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने इम्पोर्टेंट इश्यूज, वह इश्यूज जो कि शेयर होल्डर्स के लिए और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए जानने जरूरी हैं अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, वह उनको डिस्क्लोज करे, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. और कंपनी को एक वेबसाइट मेंटेन करनी चाहिए जहां पर टू वे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हो, शेयर होल्डर्स इंटरेक्ट कर सकें कंपनी के साथ और कंपनी शेयर होल्डर से इंटरेक्ट कर सके. So I am showing you the snapshot of website of Tata Steel that has been taken on 26th of April. Why the date has been shown here? Because the contents on the website are updated time to time. So this snapshot was taken on 26th April 2021 and the content shown on that website was like this on that day. So what is the purpose of showing this website to you? So that you can gain the practical knowledge, means what type of disclosures are made by the companies on their websites. So this information I want to show you. This is the information regarding the investors. When you will click on this, you will get the information regarding the investors of that company. Here the financial performance has been shown. It shows the integrated report or annual report of the company. Here the investor information is shown. Here the information related to corporate governance, means what is the code of corporate governance, what are the policies and procedures of corporate governance the company is following. Here stock exchange compliances about the company. If the company is going into any amalgamation, that information has been shown here. And here the financial performance summary has been shown. So you can visit the websites of different companies and see what type of information they are disclosing on their websites. And so that is to protect the interest of stakeholders, so that stakeholders को सारी information मिल सके और उसका full disclosure हो सके, जो भी information वह जानना चाहते हैं उस organization की financial position के बारे में, policies procedures के बारे में, so that good governance practices को ensure किया जा सके. Next important factor is compliance of rules, timely follow-up of rules. Various types of rules are framed for securing interest of stakeholders. The code for corporate governance changes from time to time subject to changes in environment. An organization must ensure that it follows the latest rules regarding the corporate governance. That is a code for corporate governance. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के रूल्स फ्रेम आउट किए जाते हैं. उसमें एक रूल है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब कोड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनामिक एनवायरनमेंट है. तो जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी चेंज करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जा रहे हैं वह लेटेस्ट रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, मींस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं उन रूल्स में, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, उनको फॉलो किया जा रहा है. तो द लेटेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, latest code of corporate governance should be followed in the organization. Another important factor is timely and accurate communication. This is also very good and very important factor in good governance. Transparency is the whole basis of good governance, and providing timely and accurate information to shareholders is a step towards transparency. Therefore, an organization
should provide timely and accurate information to enhance trust and confidence among investors and public. What is transparency? Transparency का मीनिंग है पारदर्शिता. अब ट्रांसपेरेंसी किसके लिए है? शेयर होल्डर्स को, ताकि जो इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को चाहिए वह इंफॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता रहे. सो एक ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी शेयर होल्डर्स को टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, चाहे वे कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं या जनरल पब्लिक है, ताकि इन्वेस्टर्स और जनरल पब्लिक का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास और एक ऑर्गेनाइजेशन में उनकी क्रेडिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टेक होल्डर इंटरफेस. Here, the well-defined stakeholder rights recognizes stakeholder rights, that is the rights of all those with an interest in the entity and its operations. For example, the employees, the community, suppliers and the customers, etc. यहाँ पर stakeholders के rights को well define किया जाना चाहिए. What are the rights of stakeholders? इसके साथ साथ सभी stakeholders के rights को recognize किया जाए organization में. Means एम्प्लॉयज, कम्युनिटी, सप्लायर्स जो ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उनका क्या क्या राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए. एंड एनकरेजेस कोऑपरेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स इन क्रिएटिंग वेल्थ, जॉब्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इसके साथ साथ कंपनी और स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑपरेशन को इनकरेज किया जाए. कोऑपरेशन किस पर्पस के लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ को इंक्रीज किया जा सके, जॉब्स को क्रिएट किया जा सके. बिकॉज if there will be credibility between the society and the organization, तो वह ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट पर्सनस को एम्प्लॉय कर सकते हैं. ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन, जो क्वालिफाइड पर्सनस हैं, जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तैयार होंगे और इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी प्रमोट होती है. And ensures that minority shareholders' rights are formalized and protected. एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी. तो कई बार माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशन में. सो गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है, ये उसका प्रिंसिपल भी है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को फॉर्मलाइज किया जाए कि क्या क्या राइट्स हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के और उनको प्रोटेक्ट किया जाए. Ensures that well-organized shareholders meetings are conducted, ensures that policy on related party transactions is in place. इसके अलावा शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को भी वेल ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि कब कब मीटिंग्स कंडक्ट की जाएंगे और टाइमली उन मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाए, सो दैट शेयर होल्डर्स कंपनी की पोजीशन के बारे में जान सके. Ensures that policy on extraordinary transactions involving the entity is in place. इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी इंश्योर किया जाए कि वह टाइमली कंडक्ट की जा रही हैं उनको और एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सही तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है. एंड ऑल्सो इंश्योर दैट क्लियरली डिफाइंड एंड एक्सप्लिसिट डिविडेंड पॉलिसीज आर इन प्लेस. इसके अलावा जो भी डिविडेंड पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्मुलेट की गई हैं उनको क्लियरली डिफाइन किया जाए सभी शेयर होल्डर्स को. बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स के द्वारा जो मनी इन्वेस्ट की गई है उस पर उनको जो रिटर्न मिलता है वह डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है. सो वह उससे कंसर्न होते हैं कि उनको कितनी रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, कब कब दिया जाएगा. तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिविडेंड के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट की हैं उनको क्लियरली डिफाइन करे वह सभी शेयर होल्डर्स को, वह उनको कम्युनिकेट कर दिया जाए. So these are the factors that lead to good governance and which are necessary for growth and development of any organization. And according to former United Nations Secretary General Kofi Annan, good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development. So thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And give your comments in the comment box about how did you like the video.